Hello, welcome back once again in Fundamentals of ICT subject. So in the last lecture, we have started the topic, what is network? We have seen what is network. Then after understanding what is network, we have seen what are the different types of networks are classified on the basis of geographical area that is covered by a network. So we have seen these types of networks are classified as LAN, local area network, metropolitan area network, MAN, wide area network, WAN, and personal area network, PAN. Then later we have completed one type of network, that is local area network in detail. We have understand this local area network is basically used for covering distance of only up to few hundred meters. That is, for example, a complete one building, or you can take an example of one lab where you are sharing the data resources inside a few meters distance only. So two or more PCs are connected with each other and sharing the resources, sharing the data with each other within a few hundred meters only. And we have seen the LAN in LAN, the data can be transferred with a speed of 10 Mbps to 10 Gbps. This 10 Mbps means 10 megabits per second. So then we have understand how these different computer systems will be connected, linked with each other. They are going to be connected with each other with the help of different topologies. The topology is nothing but the pattern how you are connecting the two or more pieces with each other. So later we have seen one example of this pattern shows how the two or more computer systems are connected with each other. This pattern is typically known as ring pattern. So ring pattern means what? They are connecting in a loop type system. So one first PC is connected with second, second is with third, third with fourth, fourth with fifth, and then fifth is again connected with first. So in this way, all these are connected on a LAN network. Then later we have seen some advantages and disadvantages of LAN. Now today we are going to start with the second type of network, that is Metropolitan Area Network, MAN. So as you can see, I'm sharing you the slide. It is shown over here. A metropolitan area network, MAN, is a large computer network that usually spans a city or a large campus. So क्या आपको समझ में आ रहा है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN अब ये मैन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. लैन में हम लोग ने देखे थे कि उसमें जो डिस्टेंस कवर हो सकता है इट में भी अप टू फ्यू हंड्रेड मीटर्स ओनली, या मैक्सिमम आप एग्जांपल ले सकते हो एक कंप्लीट बिल्डिंग का. ठीक है, एक कंप्लीट बिल्डिंग इज अ मैक्सिमम द एरिया विच इज कवर्ड बाय अ लैंड नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क. ना उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करता है, उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस का जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल में आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इट में कवर अप टू लार्ज कैंपस. एक लार्ज कैंपस हो सकता है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स आ सकती है, और एक सिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, एक कंप्लीट सिटी भी हो सकती है. तो मैन जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा एज कम्पेयर टू लैंड, और मैन इज ऑप्टिमाइज फॉर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया देन ए लैंड. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी दिया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैन जो है वो ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर करेगा एज कम्पेयर टू लैंड, रेंजिंग फ्रॉम सिवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग टू एंटायर सिटीज. तो जैसा कि आपको इधर पे दिख रहा है, सिवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग यानी कुछ बिल्डिंग से लेके एक एंटायर सिटीज तक का ये क्या कर सकते हैं, एक एंटायर सिटी तक का ये पूरा मैन कवर कर सकते हैं अपने नेटवर्क में. अ मैन माइट बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो नेटवर्क है या तो खुद से कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन कर सकती है, परचेज कर सकती है, परचेज करके मतलब ऑपरेट कर सकती है, बट इट इज़ यूजुअली बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग इसको क्या करते हैं, यूज विल बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सारे इंडिविजुअल लोग उसको क्या कर सकते हैं, वो नेटवर्क के अंदर पार्ट ले सकते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो मैन के अंदर क्या है, आप पूरा एक सिटीज तक का क्या कर सकते हो, एरिया को कवर कर सकते हो.
अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कौन सा नेटवर्क है वो पूरा सिटी तक कवर हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो केबल सिस्टम, पहले के टाइम पे जो केबल सिस्टम था, केबल सिस्टम, तो केबल सिस्टम एक पूरा एक एंटायर एरिया पूरा कवर होता था, एक एंटायर एरिया तक पूरा कवर होता था। या फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी आज के टाइम पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शंस वाले होते हैं, जो इंटरनेट ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनका भी एरिया कवर किया हुआ रहता है फॉर अप टू फ्यू किलोमीटर्स तक, कुछ किलोमीटर्स तक का वो एरिया उन लोग कवर करते हैं, जहाँ पे नेटवर्क सर्विस हम लोग को अपने एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स है, किसके एग्जांपल्स है, ये मैन के, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। तो लैन का जो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो दिया था, वो मैक्सिमम फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक का ही कवर हो सकता है। जैसे कि अगर कोई लैब में या अपने घरों में आपको कुछ शेयरिंग करना है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, या एक बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स होते हैं तो उन फ्लोर्स के अमंग में आप डेटा शेयर कर सकते हो। अब ये क्या है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, बिल्डिंग टू बिल्डिंग्स हो गया। कुछ बिल्डिंग से इसके अंदर पूरी कवर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कैंपस भी है, अगर कोई बहुत बड़ा कैंपस है जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे भी ये नेटवर्क सिस्टम ऑपरेट होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अ मैन ऑफर्स अ हाई स्पीड नेटवर्क टू अलाउ शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज, ये भी ऑफर करता है हाई स्पीड नेटवर्क। और यहाँ पे इसका भी देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना किलोमीटर तक कवर करता है। अ मैन टिपिकली कवर्स एन एरिया ऑफ बिटवीन 5 and 50 किलोमीटर डायमीटर। तो जैसा कि मैं आपको बताया, अब ये किलोमीटर्स तक कवर करेगा, तो कितने से कितने किलोमीटर तक कवर कर सकता है, तो 5 to 15 किलोमीटर डायमीटर के डिस्टेंस तक कवर कर सकता है। तो जैसा कि आपको बताया था, एक एंटायर सिटी ये नेटवर्क में क्या हो सकती है, कवर हो सकती है। एक एंटायर सिटी को आप क्या कर सकते हो, उस पर कवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एंटायर मुंबई सिटी, फ्रॉम ठाणे टू बायकल्ला या CST, तो ये पर्टिकुलर पूरा ये इतना डिस्टेंस तक कवर हो सकता है। तो एग्जांपल्स ऑफ मैन, यहाँ पे आप देखो एग्जांपल्स दिया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ मैन यानी मैन के अंदर कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, क्या नेटवर्क कवर होता है, वो कैसा दिखेगा। टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड DSL टू कस्टमर्स एंड केबल टीवी नेटवर्क, जैसा मैं आपको बता रहा था। एक एग्जांपल आपके सामने टेलीफोन कंपनी का भी दिया हुआ है। प्रीवियसली आपको मालूम है लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन जैसे MTNL, तो MTNL का पूरा वो एरिया कवर किया हुआ रहता था, पूरे वो मुंबई मुंबई में MTNL होता था, तो कहाँ कहाँ से पूरा कनेक्टिविटी रहती थी। तो टेलीफोन कंपनी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल केबल टीवी सिस्टम का दिया हुआ है, जो मेन केबल टीवी सिस्टम ऑपरेटर्स है, जो हर जगह पे प्रोवाइड करते हैं, जो नेटवर्क मिलता है आपको। तो ये सब पूरा एक इसका एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल, एक इमेज दिया हुआ है। ये इमेज किस तरीके से, आप देखो इधर पे रेंज बढ़ गया है, जैसे कि कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक मेन कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है। फ्यू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर सिस्टम, फिर ये मेन कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ राउटर या और भी दूसरा कुछ एग्जांपल ले सकते हो, ये यहाँ से फिर ये दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। यानी मेन मेन कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्यू राउटर्स वगैरह के साथ में, ब्रिजेस के साथ में, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, फिर वहाँ से वहाँ डेटा शेयरिंग होती है। तो ये तो वैन का डायग्राम दिया हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क का दिया हुआ है। इसी तरीके से मतलब कैसा है कि MAN में भी मतलब जो है, MAN में जो सिटीज़ के कनेक्टिविटी चाहिए आपको, विद इन द सिटीज़ के कनेक्टिविटी, तो नो डाउट उसके लिए कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स वगैरह की यूज़ होती है। वो राउटर्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये इमेज तो अभी एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें इतना ध्यान नहीं देना हम लोग को। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बस इतना समझाना था। यहाँ पे समझाना था कि जो लैन में फ्यू मीटर्स तक का डिस्टेंस कवर होता है, तो मैन में उसका जोग्राफिकल एरिया बढ़ जाता है। इट में कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर to 50 किलोमीटर, और इन सिंपल वे यू कैन से एंटायर सिटी कैन बी कवर अंडर दैट नेटवर्क। तो एक पूरी सिटी जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कवर हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आए आप लोग को, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है थोड़ा। तो हम लोग को खाली ये अंडरस्टैंडिंग रखना है, नॉलेज रखना है कि कौन कौन से नेटवर्क क्लासिफाइड है और वो नेटवर्क कहाँ तक का यूज़ होते हैं, क्या डिस्टेंस कवर करते हैं। ये सब नॉलेज, बेसिक नॉलेज हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। हम लोग को पूरा डिटेल में वो जानना नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है। हम लोग को एक नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट रखना है कि लैन, वैन, मैन, ये सब क्या है,
कैसे कनेक्टिविटी होती है, कितना डिस्टेंस होता है, कैसे होता है, ये सिर्फ थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब चीज़ें नॉलेजेस आप लोगों को रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई रिस्पॉन्स देगा मुझे, बताएगा कोई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स लेते रहना चाहिए रहता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ शायद सही बोल रहा हूँ, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। Okay, then we are moving ahead to the next type of network, that is wide area network, WAN. So जैसे ही आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, तो मतलब क्या होगा, ये जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला है, वाइड एरिया नेटवर्क। सो जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, वैन कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन होल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस नहीं आपको पूरा समझा दिया। सो वैन जो है वह वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल, सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया जो नेटवर्क करने वाला है वो कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये पूरी एंटायर कंट्री की कनेक्टिविटी हो सकती है, कॉन्टिनेंट की हो सकती है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये कॉन्टिनेंट की कनेक्टिविटी हो सकती है, और कहाँ तक, इवन होल ऑफ द वर्ल्ड। जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, तो ऑल दिस इंटरनेट सिस्टम्स जो आप यूज़ करते हो, ऑपरेट करते हो, दे आर ऑन द वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो आज इंटरनेट सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, वो वाइड एरिया नेटवर्क, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग ओवर द होल वर्ल्ड, पूरी होल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है। आप कहीं पे भी कहीं से भी डेटा शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, टॉक कर सकते हो। So these all are covering under the wide area network. A WAN is two or more LANs connected together. The LAN can be many miles apart. ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कि WAN जो है वो दो या दो से ज़्यादा LAN से कनेक्टिविटी हो सकती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, अब ये वाइड एरिया नेटवर्क डायरेक्टली अपने पीसी सिस्टम तक नहीं आएगा। पहले छोटे जो नेटवर्क सिस्टम है ना वो कनेक्टेड रहेंगे, फिर वो छोटे कनेक्ट जो सिस्टम्स है वो विद द हेल्प ऑफ सम ब्रिजेस, राउटर्स, वो इस तरीके से कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्ट होके आपस में कनेक्ट होके क्या बनेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बनेंगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क एज सच कोई ऐसा कुछ बड़ा वैसा नहीं बोला जा सकता है, जो स्मॉल स्मॉल नेटवर्क सिस्टम में उन स्मॉल स्मॉल नेटवर्क सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देना, तो वो क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। समझे? अभी जैसे हम लोग ने पढ़े लैन पढ़े, मैन पढ़े, तो वो लैन और मैन की कनेक्टिविटी आपस में कर देना, जोड़ देना, तो वो फिर क्या बन जाएगा, फिर वो क्या कवर करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि अभी मैं मैन के बारे में बता रहा था आप लोग को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एंटायर सिटी कवर करता है, तो ऐसे और जितने भी मैन होंगे उन मैन की कनेक्टिविटी आपस में कर देना विद द हेल्प ऑफ सम कम्युनिकेटिंग पार्ट जो कनेक्टिविटी करता है, तो वो फिर वो कॉम्बिनेशन जो कंबाइन कर देंगे ना, फिर वो क्या कंसिस्ट करेगा, क्या कॉम्प्राइज करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क कॉम्प्राइज करेगा। तो यही चीज एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यस सर। टू कवर ग्रेट डिस्टेंस। सर आप ऐसे फोन में भी यूज कर सकते हैं। फोन जो है आप जो यूज कर रहे हो वो खुद वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। हम लोग यस कम्युनिकेट सर। करते हैं ना कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, हमारा बेस्ट एग्जांपल वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट है। जो इंटरनेट सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं का भी डेटा शेयर करते हैं ना, कहीं का भी जो भी है, तो वो जो कनेक्टिविटी वो खुद किसमें है, वाइड एरिया नेटवर्क में। So, to cover great distance, WANs may transmit data over these high-speed phone lines और wireless satellites। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, ये कनेक्टिविटी होती कैसे है? ये जो मैं बोल रहा हूँ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, तो वो ये कनेक्टिविटी आइदर विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड फोन लाइंस, केबल लाइन, फाइबर ऑप्टिक लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके हो सकता है, या वायरलेस के थ्रू आपको अगर करना है, तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, सैटेलाइट। पता है ना, आज के सराउंड में सैटेलाइट हम लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग कम्युनिकेट करें फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपना नेटवर्क कवर कर पाते हैं, नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड्स में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि यहाँ का पूरा एरिया वहाँ से ऊपर एरिया के कवर हो जाए। तो विद द हेल्प ऑफ सच वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू हम लोग ये सब क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ते हैं और कम्युनिकेशन कर पाते हैं, डेटा रिसोर्स को शेयर कर पाते हैं। सो मल्टीपल लैन्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग डिवाइसेस सच एज, जैसा मैं आपको बोल रहा था
बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ लैंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो बहुत सारे लैन किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू यूजिंग द डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस यूज करके। ये सब अलग अलग डिवाइसेस है जो क्या करते हैं, नेटवर्क की कनेक्टिविटी करते हैं। तो इट कैन बी ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज विच एनेबल देम टू शेयर द डेटा। तो ये सब हो सकते हैं, सब जो शेयरिंग करने के लिए सब कमांड यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग ये सब चीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ bridges, routers and gateway which enable them to share data. The world most popular WAN is the internet. जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पूरी दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। आज जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, गूगल गूगल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, गूगल वगैरह, ये सब ऑल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वैन इज़ द इंटरनेट। तो आज पूरी जो वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी है, पूरी जो इंटरनेट वगैरह हम लोग इजीली अपना सर्च कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, तो दे ऑल आर अंडर कम्स अंडर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब एग्जाम्पल्स है आपके वाइड एरिया नेटवर्क के। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पूरा होल वर्ल्ड का कम्युनिकेशन हो रहा है, पूरी होल वर्ल्ड का कम्युनिकेशन। सो ऑल द कम्युनिकेशन दिस कम्स अंडर स वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, जैसा आपको मैं समझा रहा था कि मल्टीपल लैंस को, जो लोकल एरिया नेटवर्क्स है, जो मैन है, उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। वो कनेक्टिविटी किसके थ्रू कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस सच एज ब्रिजेस, राउटर्स और गेटवे। ये सबको आपस में इस तरीके से कनेक्ट करके तब वो बनता है, तब वो क्या फॉर्म करता है, वो क्या फॉर्म करता है, वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है। तो छोटे छोटे नेटवर्क को एक साथ जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, फिर वो क्या कॉम्प्राइज करता है, वाइड एरिया नेटवर्क कॉम्प्राइज करता है। तो आई थिंक अभी आप लोग को ये तीनों एस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा, लैन का, मैन का, वैन का। यस सर। लैन जो है वो Yes, sir. फ्यू मीटर्स तक का डिस्टेंस कवर करता है। बेस्ट एग्जांपल, अ सिंगल बिल्डिंग तक का जो नेटवर्क रिसोर्स शेयर होगा उसको बोल लेंगे कम्स अंडर द लैन। फिर मैन के बारे में बताया, अगर हम लोगों को एक सिटी के बीच में डेटा रिसोर्स को शेयर करना है, तो वो कौन सा नेटवर्क में आएगा, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएगा, जिसका डिस्टेंस कितना कवर हो सकता है, 5 किलोमीटर to 50 किलोमीटर approximately. Then the last we have seen the wide area network, the connectivity which is done over an entire whole world with the help of some wired communication such as fiber optic cable or different telephone lines, or it may be wireless such as for example satellite. तो ये पूरी होल वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है वो जो आती है, जो कॉम्प्रोमाइज करती है, वो कौन सा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज करती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड, अभी जो आपके सामने जो भी नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क सिस्टम जो आपको दिख रहा है, इट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये अभी अलग है, अब ये PAN क्या है वो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो नाम से ही आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए क्या चीज़ है। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, लोकल मतलब लोकली जो होगा, मेट्रोपॉलिटन मतलब थोड़ा सिटी तक मेट्रोपॉलिटन, उसको मेट्रोपॉलिटन मतलब पूरे सिटी को बोला जाता है, और वाइड मतलब पूरे होल वर्ल्ड की बात होगी। अब इसी तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क, अब पर्सनल मतलब जो पर्सनली, जो सिर्फ खुद सेपरेटली, जो सिर्फ फॉर एग्जांपल एक सिर्फ अपने होम सिस्टम में जो करना चाहता है। तो ये नाम से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये इसका क्या मतलब हो सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN। So a personal area network (PAN) is a computer network which used for communication among computer devices, including telephones and personal digital assistants in proximity to an individual body. ठीक है, बात समझ में आई। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, जिसका खुद का ओन नेटवर्क होता है। जैसा बहुत से लोग अभी आप देखते होंगे आज के टाइम पे, बहुत से लोग अपने घरों में सिक्योरिटी पर्पस के लिए सब कनेक्टिविटी करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ में जोड़ के रखते हैं। तो वो खुद का उनका परचेज किया हुआ रहता है, बाय किया हुआ रहता है, खुद का इंडिविजुअल उनका होता है। जैसे अभी होम ऑटोमेशन सिस्टम हम लोग सुनते हैं आज के टाइम पे, होम ऑटोमेशन। तो होम ऑटोमेशन में खूब ऑटोमेटिकली सब क्या करते हैं, जस्ट क्लिकिंग ऑन मोबाइल में क्लिक करके वो चीज़ क्या हो जाती है, उनकी ऑपरेट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल उनको कुछ मैसेज चाहिए, कुछ काम है, तो जस्ट बाय डूइंग मैसेजिंग वो चीज़ क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। तो वो ऐसी तो नहीं होती होगी, उनके बीच में आपस में कुछ कनेक्टिविटी होगी, वो कनेक्टिविटी क्या होगी, वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। RFID का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, RFID टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो जो खुद का जिसका पर्सनल
जो कनेक्शन किया हुआ रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर वो जो नेटवर्क सिस्टम वो खुद का उसने बिल्ड किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, जो किसके लिए यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर डिवाइस, टेलीफोन, और जो पर्सनल उसकी डिजिटल चीज़ें हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो उसको पर्सनली जो यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल घर के लिए कुछ भी अलग अलग डिजिटल चीज़ है जो उसके लिए अपग्रेड होती है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो माउंट करके रखता है, फॉर एग्जांपल कैमरा, कैमरा आजकल हर जगह पे माउंट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। तो कैमरे के लिए भी हम लोग यहाँ पे सबको सिक्योरिटी पर्पज़ का नेटवर्क के अंदर ही आता है वो भी। तो जो इंडिविजुअल बॉडी, खुद इंडिविजुअल बॉडी जो अपना नेटवर्क बिल्ड करके रखती है फॉर इट्स ओन पर्पस, तो वो किसके अंदर में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। द डिवाइस मे और मे नॉट बिलोंग टू द पर्सन इन क्वेश्चन, द रीच ऑफ अ पेन इज टिपिकली अ फ्यू मीटर्स। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर ये पर्सनली है, खुद एक इंडिविजुअल का है, तो वो इंडिविजुअल अपने डिस्टेंस के लिए यूज़ करेगा, अपने अपने जितना उसका डिस्टेंस कवर होता है उतने के लिए यूज़ करेगा। तो इट में भी टिपिकली अ फ्यू मीटर्स तक, वो फ्यू मीटर्स तक का क्या करेगा, वो एरिया वो कवर करेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एग्जांपल आपके सामने इधर पे दिया हुआ है। क्या एग्जांपल आपके सामने इधर पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर ये होम होम में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, तो वो कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा है, प्रिंटर भी है, ये कॉर्डलेस वाला फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है। तो इन सब चीज़ों के बीच में आमंग्स में कनेक्टिविटी जो खुद का इंडिविजुअल बॉडी का बाय किया हुआ है, ओन किया हुआ है, खुद का उसका नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, तो इट में कम्स अंडर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये होता है, ये होता है। अभी आजकल बहुत से लोग अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपने घर में वो सब चीज़ बिल्ड करके रखते हैं, बना के रखते हैं। तो दिस ऑल आर कम्स अंडर दी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आई थिंक आप लोग को मैंने नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं शायद मैं क्लियर कर पाया हूँगा। तो जो जो Yes, sir. नेटवर्क के बारे में हम लोग को जो जो समझना था, अंडरस्टैंड करना था, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ था उसके बारे में हम लोग ने अंडरस्टैंड किए, जाने। सबसे पहले तो हम लोग ने नेटवर्क को अंडरस्टैंड किए कि व्हाट यू मीन बाय नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क बेसिकली इट इज़ नथिंग बट दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को ऐसा लिंक करना ताकि हम इजीली अपने डेटा को, रिसोर्स को क्या कर पाए, एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाए। शेयर कर पाए। यस, तो ये चीज़ किसके थ्रू होती है, नेटवर्क के थ्रू होती है। अब वो नेटवर्क चाहे आप वायर्ड सिस्टम का यूज़ कर लो या वायरलेस सिस्टम का यूज़ कर लो। फिर हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को अंडरस्टैंड किए ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, जितना एरिया वो कवर करते हैं। तो उसमें से हम लोग ने लैंड को देखे, मैन को देखे, वैन को देखे, और लास्ट में इन दी एंड वी हैव अंडरस्टूड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैंड का हम लोग ने ये कवर की है कि इट में कवर्स अप टू अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स डिस्टेंस ओनली, इट में बी यूज फॉर बाय द एंटायर बिल्डिंग सिस्टम। फिर इसके बाद हम लोग ने अंडरस्टैंड किए मैन के बारे में। मैन कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ओवर द एंटायर सिटी। एंटायर सिटी तक का जो एरिया जो कवर हो सकता है जो नेटवर्क में, वो मैन के अंदर आता है। Then we have seen the wide area network, the best example of today's whole world using the internet. It comes under the wide area network. So wide area network का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, इंटरनेट। तो जो इंटरनेट आप यूज़ करते हो इट कम्स अंडर वाइड एरिया नेटवर्क। जो कनेक्शन जो एंटायर ओवर होल ऑफ द वर्ल्ड तक किया जा सकता है वो किसके थ्रू होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। और ये करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस में भी यूज़ हो सकते हैं। अगर वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी करने के लिए कौन कौन से वो डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं, टू और मोर लैंड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ विद द हेल्प ऑफ ये सब ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवे। ये सब जो टावर्स वगैरह में आप देखते हो ना, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर Yes, जो sir. माउंट किया हुआ रहता है, वो सब Yes. दिस इज आर द एग्जांपल्स ऑफ राउटर्स जो रिपीट करते हैं, हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी Yes, sir. जगह, रिपीट करते हैं, भेजते हैं। तो ये सब थ्री चीज़ें पॉसिबल होती है उसके थ्रू। एंड देन वी हैव सीन द पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब वो जो खुद का पर्सनली नेटवर्क बिल्ड किया हुआ रहता है फॉर इट्स ओन पर्पस, अपने खुद के पर्पस के लिए, ताकि वो अपनी इजीली जितने भी घरों की चीज़ें हैं उनके बीच में अगर उसको कम्युनिकेशन करना हो या कुछ भी करना हो तो वो इजीली उससे कम्युनिकेशन कर सकता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टाइप। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में पहले तो कंप्यूटर्स के पूरे जितने भी पेरिफेरल्स वगैरह, डिवाइसेस वगैरह, वो सबको देखे, अंडरस्टैंड किए। फिर उसके बाद था नेटवर्क इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करना था
नेटवर्क एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग ने अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद जो आपके सामने फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट चीज़ जो दी हुई है वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा हम लोग को ऑपरेट कर रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर में क्या फर्क है? किसमें किसमें गेटवे और सर्वर में क्या फर्क है? गेटवे और सर्वर, ये तो आपका अभी ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ये तो आपको नेटवर्किंग सब्जेक्ट में ही मालूम पड़ेगा आगे चल के। गेटवे और सर्वे, जहाँ तक मैं जानता हूँ गेटवे जो चीज़ है ना वो गेटवे कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अभी आप लोग को इधर पे दिख रहा था, मैंने यहाँ पे बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो लेंस है वो आपस में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइसेस। तो गेटवे इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस विच कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट लेंस। तो एक और एक से ज़्यादा लैन को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं तो वो है ब्रिजेस, राउटर्स और गेटवे। तो ये जो गेटवे मतलब कनेक्ट करता है दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और सर्वर वो होता है जहाँ पे आपका डेटाबेस सेव होता है, डेटाबेस सेव होता है। जैसे आप जो आपको रिसोर्स शेयर करना है तो वो रिसोर्स पहले जो शेयर करना है वो पहले इधर पे जाएगा, वो आपके सर्वर पे जाएगा, फिर वो सर्वर से आप अपना डेटा क्या करोगे, रिट्रीव बैक करोगे। तो सर्वर इज द प्लेस वेयर यू आर डेटा शेयरिंग, जो पर्पज़ के लिए आप डेटा को जो भेज रहे हो वो सर्वर के थ्रू आप एक्सेस कर पाए। तो फर्स्ट यहाँ के थ्रू आप डेटा सर्वर पे जा रहे हैं, फिर सर्वर से आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। और गेटवे क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स वगैरह को कनेक्टिविटी करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रहा है उसको बोलते हैं गेटवे। ठीक है, तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर पाया हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस आपको दे पाया हूँ। यस सर। ओके, तो ये था हम लोग का यहाँ तक का नेटवर्क का पार्ट था। अब हम लोग को इसके आगे के जो लेक्चर में हम लोग को देखना है वो हम लोग ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को किस तरीके से ऑपरेट करना है, मैनेज करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीनेम करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें। तो अब हम लोग अपना अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से ऑपरेशन करना है, ऑपरेट वगैरह करना है। सो आई थिंक फिर मैं अभी यहाँ पे आज के दिन इधर ही पे एंड करता हूँ। आज ये टॉपिक मेरा इधर पे ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे एंड करता हूँ। जो बेसिक पार्ट है वो किस तरीके से ऑपरेट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। अल्लाह हाफिज। Yes, sir. अल्लाह हाफिज सर। Yes, sir. Okay. So once again thank you very much for joining and listening and understanding. प्लीज इसी तरीके से ज्वाइन करते रहो। Bye, sir. सर अटेंडेंस 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 जो है वो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मेरे पास डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाती है। Okay, जो sir. भी जो भी जितने Okay, कब sir. आता है कब आता है सब इधर पे रिकॉर्ड हो जाता है, मुझे दिखता यस सर। है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Allah Hafiz. You're थैंक यू, welcome. Thank you, sir. थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.